جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیرت کے نام پہ جو لیکچر ہم سنتے رہے پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے، ہم نے خاصے قصے کہانیاں سنی، لیکن پھر بالآخر نیٹو سپلائی لائن جو ہے بحال کر دی گئی۔ کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ کی توہین بھی ہوئی ہے، ملک و قوم کو بیچا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جمہوریت کی فتح ہے اور ہم نے امریکہ سے اپنے مطالبات منوا لی، اور امریکہ نے بالآخر سوری کا لفظ استعمال کیا، اپولوجی نہیں کی۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینیٹر طارق عظیم صاحب، سینئر رہنمائی پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ فوزی قصوری صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ مولا بخش چانڈیو صاحب ہمیں جوائن کریں گے ویڈیو لنک پہ، سینئر رہنمائی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، سابق ڈی جی ISI رہ چکے ہیں۔ آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ جنرل صاحب سے گفتگو کا ذرا آغاز کر لیں۔ جنرل صاحب، یہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ جی نیٹو سپلائی لائن کھلے گی تو پھر پاکستان میں آپ لوگ راستہ بھی روکیں گے دفاعی پاکستان کونسل کے تحت، اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مطالبات بھی سامنے آئے۔ کیا سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا؟ پاکستانی قوم جو ہے، قوم کی طرف ہم ایک طرف رکھ دیں، پاکستانی حکومت چند ڈالروں کے عوض پھر سے بک گئی؟ دیکھیے، اس کرپٹ حکومت نے فیصلہ کر لیا جو ایکسپیکٹڈ تھا۔ ابھی ہمارا کام ہے، قوم کا کام ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ یہ زمین تو ہماری ہے نا، انہوں نے تو اس کو اپنی زمین نہیں کبھی سمجھا، ان لوگوں کو کبھی اپنے لوگ ہی نہیں سمجھا، لیکن ہمارے تو ہیں۔ اور یہ بیچ میں سے کوئی 2500 کلومیٹر گزر کے جانا ہے، انہوں نے دیکھے گے کہ چلاتے ہیں کتنے۔ یہ تو ابھی بہت لمبا عرصہ ہے نا۔ یہ تو بہت سارے اور کام بھی کہتے ہیں، حکم بہت سے دیتے ہیں، کیا مانے جاتے ہیں سارے ان کے حکم؟ جب یہ کہتے ہیں کہ پاور آؤٹیجز نہیں ہوں گی، لیکن وہ ہوتی ہیں۔ ان کے احکامات کی کیا ہے؟ یہ کرپٹ حکومت ہے بیچاری، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے سوئس بینک کے پیسے بچانے کے لیے ایک آدمی کے لیے قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے، اور وہ آئندہ بھی دے گی، لیکن اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم پاکستان کا مستقبل بھی فروخت کر ڈالیں۔ لیکن جنرل صاحب، آپ نے کل دیکھا ہوگا DCC کی میٹنگ ہوئی، اس میں بہرحال بالآخر جو فائنل فیصلہ تھا DCC کی میٹنگ میں، کیا آرمی چیف بیٹھے تھے، تینوں سروسز چیفز وہاں پہ بیٹھے تھے، اور دین فائنلی اس چیز کو اناؤنس کیا گیا۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں فوج بھی تو آن بورڈ ہے، فارن پالیسی بالآخر فوج تو ہی چلا رہی ہے، تو فوجی فیصلہ بھی تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے؟ بھلے ہوگی، فوج تو NRO پہ بھی آن بورڈ تھی، فوج تو پرویز مشرف کے فیصلے پہ بھی آن بورڈ تھی، فوج تو یحییٰ خان جو ہے بھٹو صاحب کے ساتھ آن بورڈ تھے مشرقی پاکستان میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلے صحیح تھے، وہ غلط فیصلے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتی ہے فوج کی قیادت۔ اگر وہاں بیٹھ کے وہ غلط کام کہتے ہیں، غلط فیصلوں میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی چیز غلط ہے۔ تو جنرل صاحب یہ بتائیں، آپ نے کہا راہداری تو پاکستانی استعمال ہوگی، ٹینکرز یہاں سے جائیں گے، اب وہ ٹینکرز والے کہہ رہے ہیں ان کی ایسوسیشن ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، تو ہم نے پہلے بھی دیکھا آگ لگا دی جاتی تھی ٹینکرز کو، تو کیا ہوگا اب؟ رستہ کیسے روکا جائے گا؟ غیر رسمی تھا، یہ ایک بہت بڑا کیچ ہے اس کے اندر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ غیر رسمی کوئی معاہدہ نہیں تھا، ریٹرن نہیں تھا۔ اب یہ معاہدہ جو ہے باقاعدہ رسمی ہو جائے گا، اور جو ٹینکر یہاں سے گئے ان کے اندر کوئی ان کو نقصان ہوا، رینجرز ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہوں یا پولیس کر رہی ہو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ کہے گا کہ ہمارے لا کے مطابق یہ ہماری پراپرٹی ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے، کیوں ڈیمیج ہوئی؟ لہذا ان کے پاس ایک جواز اور ایک حق مل جائے گا کہ پاکستان کو مزید دبا سکے، یا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ بھی کر سکے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ ریٹن ایگریمنٹ ہو گیا نا؟ پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ویسے ہی تھی، طے شدہ تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ریٹرن ایگریمنٹ تو ایک ایسا ہی لعنت جو ہمارے گلے میں ایسا توق ڈال لیں گے، جو ہم اس کے ہماری قوم کی جو نسلیں ہیں وہ پچھتاتی رہیں گی اور آنسو بہاتی رہیں گی۔ تو یہ جو $250 فی کنٹینر جو برقرار فیس رکھی گئی، کہا جا رہا تھا $5000 تک جائیں گے، تو پاکستان اگر منوانے کی پوزیشن میں تھا تو پھر تو کچھ نہیں منوایا گیا نا امریکہ سے؟ نہیں، یہ دیکھیں فیس وغیرہ تو وہ کیرو صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، اور میں ایگری کرتا ہوں کہ فیس وغیرہ کی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اصل ایشو جو ہے نا وہ اسما آپ سمجھیے کہ امریکہ براجمان رہنا چاہتا ہے افغانستان میں، اس کو مجبوری ہے، ان کا خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ان کی پبلک اوپینین اس آکوپیشن کے خلاف ہے، لہذا وہ اپنے اڈے وہاں برقرار رکھ کے اور بھارت کو چودراہٹ وہاں دے کے سونپ کے تو وہ نکلنا چاہتا ہے۔ پارلیمنٹ کی صرف ایک پارٹی کی وہ آواز نہیں ہے، پورے پاکستان کی آواز ہے، تو اس کو ماننا، پاکستان کو ماننا ہے۔ اب کوئی بھی بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سفارشات تھیں، جنرل حمید گل صاحب ہے یا کوئی اور پارٹی ہے، ان کی اپنے اگر نظریات ہیں، ان کی اپنی فکر ہے، کوئی سوچ ہے، تو اس سے میں نہیں بندہ ہوا یا وہ میری سوچ نہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، وہ جیسے چاہے ویسے کرے، اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، پارٹی کا کارکن ہوں، اس وقت حکومت کا نمائندہ بھی ہوں، تو جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا اس کے مطابق چلے ہیں۔ اور پارلیمنٹ کا سب سے بڑا مطالبہ پاکستان کا تھا، آپ کو یاد ہے، سب کہہ رہے تھے جناب، لیکن پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ غیر مشروط معافی نا۔ ابھی کون سی مشروط کی کیا ہے اس میں؟
अभी आप कहेंगे सारी का मतलब और है, अपॉलॉजी का मतलब और है, मोजरत का मतलब और है, माफ करने का मतलब और है। ये तो सारे अल्फाजों का खेल है। अब जैसे आप करना चाहें, पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लंदन से आए तो एक क़यामत बपा कर दी गई थी, जनाब ये तो मुआहिदा करके आए, जनाब ये तो बहाल हो गई, कोई बहाल नहीं हुई। आग 1.5 महीना 2 महीना होने को आया, कोई बहाल नहीं, बातें चल रही थी और तमाम लोगों को एतमाद में लिया जा रहा था। और दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तान की फौज जिस जमाने में भी जो भी कमांडर बैठा है वो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का जो उनका गहरा ताल्लुक है उसका इजहार करता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक मुद्दत में जो जनरल साहब बैठे हैं वो तो मुबे वतन है, जो आज जो जनरल हैं, जो भी फौज की कमान कर रहे हैं, जो लोग बैठे हैं इस मामले में, वो मुबे वतन नहीं हो सकते। जी जनरल साहब क्या कहेंगे? ठीक है, पार्लियामेंट की एक ही बात याद रहेगी कि वो नीमे दरू नेमे बरू एक मोहमल किस्म की जो माफी है, क्या वही पार्लियामेंट में किया गया था या आपको चांडियो साहब को बाकी चीजें भी नजर आते हैं? मैं मानता हूं चांडियो साहब एक बड़े अच्छे पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन पार्टी से ऊपर पाकिस्तान भी है, पार्टी के ऊपर आपके लोग भी हैं। अभी पार्लियामेंट तो उस वक्त बड़ी सुप्रीम होती है जब वो खत लिखने की बात आती है। आज पार्टी की जो पार्लियामेंट की गाइडलाइंस हैं वो क्यों सुप्रीम नहीं है? सुप्रीम नहीं है, बिल्कुल। मैं इसी हवाले से तारिक अजीम साहब से बात करती हूँ। तारिक अजीम साहब, आप सारी गुफ्तगू सुनी। पार्लियामेंट की करारदाद हमारे सामने मुसवदा उसका कि पाकिस्तान की जमीनी और फजाई हदूद से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये तो फिर नेटो सप्लाई लाइन खुल गई, तो पीछे क्या रह गया? पार्लियामेंट ऑन बोर्ड थी इस इशू के हवाले से, आपको लग रहा है क्या? पार्लियामेंट में तो डिस्कस ही नहीं किया गया जी। पार्लियामेंट में कब डिस्कस हुआ? पार्लियामेंट में तो एक मुतफ़िका करारदाद है जिसके बारे में, और ये रिपोर्ट है मेरे सामने, अगर आपको पढ़ के बताऊं, लंबी रिपोर्ट है, तो मैं इसका सिर्फ मुख्तसर तो बता दूँ आपको कि उसमें सबसे पहले जो बात की गई थी कि जी सेडेशन ऑफ ड्रोन अटैक, सबसे पहले पेज पे जो थी उनकी 18 बंदों के इस पे साइन हैं। ड्रोन अटैक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे। मैं अभी आने से पहले जनाब अपने कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बड़े फुल ऑफ डबल टॉक थी वो सारी की सारी, कुछ समझ नहीं आता था ड्रोन अटैक्स के बारे में क्या कहा। पहले जो है 4 साल में 2004 से लेके 2008 तक 9 अटैक्स हुए, बिल्कुल, और 2008 से 2012 तक 288 हुए। बिल्कुल। अब मैं नहीं कह रहा, ये जो अमेरिकन मीडिया कह रहा है वो बता रहे हैं कि ये अटैक्स हुए। अब उस पर तो इन्होंने बात ही नहीं की। बात आ जाती फिर ये घूम घुमा के आ जाते जी सॉरी कह दिया उन्होंने। अरे भाई, सॉरी का और अपोलोजाइज का और अनकंडीशनल अपोलॉजी का मतलब समझे। यहाँ पे तो जब एक स्टेट, 2 स्टेट्स के दरमियान जब बातचीत होती है उसमें एक एक लफ्ज़ जो होता है डिप्लोमेटिक टर्म्स में वो बहुत बड़ी मीनिंग कैरी करता है। सॉरी ऐसे है कि एक्सीडेंट हो गया हमारी आपकी गाड़ी का, तो मैं कहूँगा जी आई एम सॉरी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कसूर आपका है। अब सुन लीजिए मेरी बात, एक्सीडेंट हो गया, आई एम सॉरी अबाउट दिस, लेकिन कसूर आपका है। दूसरे में आपसे कहूं जी आई अपोलोजाइज, ये मेरा कसूर है, मैं माफी मांगता हूं। ये फर्क है माफी मांगने में और सारी कहने। सर, वहां पे दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान थे उन्होंने सिर्फ एक ही बार कहा सॉरी, और फिर उनका ये लफ्ज अब मैं आगे रिपीट नहीं करूंगी, तो ये तो हालत है जी। मैंने आपको बता दिया, अगर कोई समझ नहीं सके तो खैर उनकी अपनी मर्जी, आंखें बंद कर लेंगे जी, अपने सारी कह दिया, बाकी मामला ठीक है। पैसे की बात है, आपको पता है टोटल ये हमें ब्रीफिंग दी गई, मैं खुद अपनी बात ही कर रहा, सेनेट की पोर्ट एंड शिपिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी गई, हमें टोटल एक जो है 40 फुट के कंटेनर के जो पोर्ट अथॉरिटी को पैसा मिलता है वो सिर्फ 410 रुपए मिलता था। अंदाजा लगा 410 रुपए, इवन $5 नहीं बनते। जो वो डीजल जो क्रेन जाती है उसको उठाने के लिए जहाज से, उसका डीजल का खर्चा भी नहीं है। तो इट वाज वी वर नॉट गेटिंग एनीथिंग एनीवे। और उसके बाद उसको नहीं बोलिया तो ठीक है जी, फेयर एनफ, जैसे उसी तरह पे हम काम कर रहे हैं। तो सड़कों का हमारा बुरा हाल हो गया, सड़कों का अगेन मैंने पूछा जनाब हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब से पूछा भी कितना हमारा डैमेज हुआ है। उन्होंने कहा जी कि 60 to 80 बिलियन डॉलर का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो चुका है। क्या हमने उनको साहब मांगा? हम बात कर रहे हैं CSF की, कम्युनिटी सपोर्ट फंड, ये वो है जो कि हमें वापस लेना होता है उनसे। जो हमने खर्चा किया, जो हमने तेल दिया, जो हमको चीजें दी उनको, वो हमें वापस मिलना था 3 बिलियन के करीब। उसमें से उन्होंने 1 पॉइंट समथिंग का भी प्रॉमिस किया है। वो भी इस वजह से कि 7 माह में, कल ही पेंटागन की रिपोर्ट है कि कल 7 माह में उनको आसमा 2.1 बिलियन उन्होंने एक्स्ट्रा मांगा है कि हमें एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है ये 7 माह में, हमारा रूट खोल देना चाहिए। तो हम ये किस चीज़ को कर रहे हैं? अफसोस की बात यह कि जब कह रहे हैं 7 माह में हम नेगोशिएट कर रहे थे, क्या नेगोशिएट कर रहे थे? हमारे डिफेंस मिनिस्टर अहमद मुख्तार साहब कह रहे थे कि जी उनके कहने से या कुछ करने से हमारे 24 जवान वापस तो नहीं आ जाएंगे। मैं उनकी ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। खर साहबा क्या कह रही थी? वी हैव टू मूव ऑन, भूल जाइए, आगे चलिए, आगे चलिए। और मेरी राय में ये तो हमारी स्टैंड रहा है। हम आगे बड़ी बढ़के मारेंगे, हमने जी बड़ा 7 महीने उनका स्टैंड लिया और ये कमाल कर दिया जी, हमने इतने बड़े मुल्क के साथ हमने स्टैंड ले लिया। और भाई स्टैंड लेके हमने गेन क्या किया?
फौजिया कसूरी साहिबा, हम तो चलें आगे बढ़ गए, क्या वाकई हम आगे बढ़ गए? हमारे 27 जवान, उनकी शहादतें वो कहाँ गई? क्या खून इतना ही सस्ता हो गया था? और फिर ये सप्लाई लाइन तो चले, अगर खोलनी थी तो फिर पहले दिन ही खोल देते, उन्हीं रूट्स पे, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर खोलना था इसको। तो देखिए आसमा, ये हुकूमत पाकिस्तान की आवाम के साथ गेम्स खेल रही है। हर जगह के ऊपर, हर मौके के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की तजलील का बायस ये बने हैं। ये जो एक नेटो सप्लाई रूट्स रोके गए थे, ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि अब आप रीनेगोशिएट करते डिग्निटी के साथ, आप अपनी थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आप बैठते, आप इसके ऊपर डिसाइड करते और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में आपका जो भी कोई फैसला करते आप, वो आप उसके लिए करते। ये कह रहे हैं हुकूमत वाले कि जी पार्लियामेंट ने ये कहा, पार्लियामेंट ने तो 3 रेजोल्यूशंस और भी पास किए थे। ये इस वक्त किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मसला है। इसको इनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए था। ये जो तमाम जो इस हुकूमत का हॉलमार्क रहा है इनकी कारकर्दगी का, वो करप्शन है। चाहे वो आप हमारी मईशत में देखें, चाहे आप हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर देखें, पाकिस्तान की इमेज को इन्होंने तमाम दुनिया में बर्बाद करके रख दिया है। दिस इज ऑल बकवास जो ये कर रहे हैं। वेयर इज द अरेंजमेंट ऑन ड्रोन अटैक्स? किस लिए इन्होंने ड्रोन अटैक, इनको चाहिए था ये इसको यूज करते कि अब ड्रोन अटैक्स हमारी सॉइल पे से नहीं लॉन्च होंगे, हमारे लोगों को नहीं मारा जाएगा ड्रोन अटैक से। ड्रोन अटैक्स का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र ही इस चीज के अंदर नहीं है। जमात क्या करिए, धरना देंगे? इमरान खान ने कहा था पहले कि हम धरना भी देंगे इसको। आसमा, हमारी जमात ने हमेशा जो हमसे पॉसिबल था हमने किया है, हमने दिए भी हैं। हम एक पॉलिटिकल जमात है, हम मुल्क में एनर्की नहीं चाहते, हम लोगों को सड़कों पे खून नहीं बहाने देना चाह रहे। हम हर लिहाज से एक सियासी जमात एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मीडिया पोजीशंस लेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, हम वो अवेयरनेस करेंगे, हम इस सब्जेक्ट पे बात करते रहेंगे, बिकॉज हम ही वो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने पहले दिन से हमेशा इस वॉर के खिलाफ हम रहे। हमने कहा ये हमारी वॉर नहीं है, और ये ना सिर्फ हमारी वॉर नहीं है, जहां से ये वॉर लड़ी जा रही है अमेरिका की कौम जो है, उनके जो शहरी हैं वो कह रहे हैं कि इस वॉर से हमको वॉर से बाहर निकलना है। तो फिर पाकिस्तान को इसमें क्यों धकेला जा रहा है? जनरल साहब, आखिरी बात आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ये अब हुकूमत तो बार बार कह रही है फतह हो गई, और कुछ जो डुगडुगी बजाने वाले हैं उनके हाथों में हमें खेलना नहीं चाहिए, खुफिया मुआहदा नहीं किया गया। तो अगर ये ऐसा कुछ नहीं किया गया और फिर जस्ट वो कह रहे हैं हम सिर्फ अफसोस का इजहार करते हैं इस वाकये पे, तो क्या फिर वाकई कुछ हमारे यहाँ लोग डुगडुगी बजा रहे हैं, या अमेरिका का सिर्फ सॉरी कह देना ही हमारे लिए इतनी बड़ी फतह हो गई कि हम सुबह से शादियाने बजा रहे हैं? इस हुकूमत के पास कोई मॉरल मैंडेट है ही नहीं थी कि ये कहने की, पार्लियामेंट्री मैंडेट भी नहीं थी और मॉरल मैंडेट भी नहीं थी। तो फिर इन्होंने ये क्यों फैसला किया? इसका ये मतलब है दबाव में आके किया, अपने लालच की, अपने स्विस बैंक के अकाउंट्स को छुपाने के लिए, और एक सपोर्ट जो कि गिरती हुई हुकूमत को एक मदद चाहिए वो चाहे उसके लिए किया। ये गलत है और नहीं होने देंगे हम, इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो इससे फिर अनार्की तो नहीं फैलेगी मुल्क में? जो कहा जा रहा था सुसाइडर्स जो होंगे वो इस्लामाबाद का रुख तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बदनामी तो इन्होंने फैलाई हुई है। पहले थोड़ा कराची में कत्ल गारत किया जा रहा है और बहुत कुछ, ये बदनामी नहीं तो और क्या है? वजीरिस्तान में क्या हो रहा है? और ये जो जिसको रियायत देना चाहते हैं, क्या वहां से रोज आए दिन आके वो क्रॉस करके ड्यूरेंट लाइन को और फिर अफगानिस्तान से अटैक नहीं करते पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर? किसके छोड़े हुए लोग हैं वो? कौन है जिनको वो असलत जो इनको दे रहा है, पैसा दे रहा है, जो उनको इंसाइट कर रहा है कि आप जाके अटैक करो? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? हर जगह ये कैफियत है। आप अपने दुश्मन को पूजा करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा, फिर उसके बदले में अनार्की ही फैलेगी। जन साहब आपका शुक्रिया, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान को फिर क्या मजीद इकदाम करना होंगे, क्योंकि मुल्क में अगर जलसे जुलूस और इस हवाले से तहरीकों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दूसरी जानिब फिर एक और तरीके से बदअमनी फैलती है और पार्लियामेंट की इज्जत और तौकीर कहाँ गई और पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम की इज्जत कहाँ गई, इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।